अरे अड़सिंगा जी, अगर भारतीय लोग मुझे जबरदस्ती भारतीय खान पान से बांध कर रखना चाहते हैं तो उनसे कहो कि एक रसोइया भेजें और उसको रखने के लिए थोड़े पैसे भी। मुसीबत के समय रत्ती भर मदद किए बिना ऐसे बेवकूफी भरे आदेश देना मुझे हंसने पर मजबूर कर देता है। दूसरी तरफ अगर कोई धर्म प्रचारक ये बोले कि मैंने सन्यास के 2 शपथ ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन तोड़ा है तो उनसे कहो कि वो सबसे बड़े झूठे हैं। भारत से आए पत्रों में मुझे बार बार आगे जाने को लिखा होता है। मुझे नहीं मालूम मैं कब वापस जाऊंगा, लेकिन मैंने इस देश को बहुत जान लिया है। मेरे विचार से मैं जल्दी यूरोप जाऊंगा और कुछ महीनों इंग्लैंड में काम पूरा करने के बाद मैं भारत वापस चला जाऊंगा, फिर पूरी तरह कुछ सालों के लिए या फिर हमेशा हमेशा के लिए अज्ञातवास में चला जाऊंगा। Sorry, Shomer. It's a queer life, man. No rest. Rest will be my death. मुझे मरने के लिए भी कोसो। What was that? I have no time even to die. I long for my rags, my sleep on the trees, and my food from my packing. Come on, Shomer. Get up. I work, earn my own bread, and help my country. मेरी सफलता इस चर्चित शैली की वजह से है। एक शिक्षक की महानता उसकी सरल भाषा में छिपी होती है। सरलता एक राज है। मेरी भाषा का आदर्श मेरे गुरुदेव की भाषा है, बहुत आम बोलचाल की, फिर भी बहुत मुखर। मेरे आदर्शों को कुछ शब्दों में ढाला जा सकता है और वह है मनुष्य जाति को उसकी दिव्यता का ज्ञान कराना और उसे बताना कि कैसे इस दिव्यता का इस्तेमाल जीवन के हर एक पल में किया जा सकता है। धर्म संसार के लिए मृतप्राय मजाक के समान हो गया है। दुनिया को जो चाहिए वह है चारित्र्य। It is taught in the West that society began some 1800 years ago with the onset of the New Testament. But it is not true as regards the whole world. But why didn't your riches come to England to teach us? Because there was no England to come to. Would they come and preach to the forest? Oh, yes. मैं एक ऐसे दर्शन को फैलाना चाहता हूं जो संसार के समस्त धर्मों को आधार दे सके और मेरा दृष्टिकोण उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण है। मेरी शिक्षा किसी भी धर्म की शत्रु नहीं है। मेरी शिक्षा हमारी पौराणिक किताबों से निकाला गया है। मेरा खुद का निचोड़ है और मेरे गुरुदेव ने अपने ज्ञान का प्रकाश उस पर बिखेरा है। मैं कोई अलौकिक शक्ति होने का दावा नहीं करता। जो कुछ भी मेरी शिक्षा में सर्वोच्च बुद्धिमत्ता को दर्शाता है और अगर विचारशील मनुष्य उसे अपनाता है, उसका अपनाया जाना ही मेरा पारितोष है। Come on, George. Come on. Let me. Smells good. I made a dish. Oh. It's a delicious mixture of saffron, lavender, maize, cubebs, cinnamons, cloves,
cream, cardamoms, lime juice, onions, almond, pepper, and raisins and rice. Please. My plan, as I was saying, is to start 2 centers in India. My interests are international, not Indian alone. At 20 years of age, I was the most unsympathetic, uncompromisingly fanatic. I would not walk on the footpath on the theatre side of the streets in Calcutta. But now, at 33, I can live in the same house with prostitutes and never would think of saying a word of reproach to them. Is it degenerate? Or is it that I'm broadening out into the universal love, which is the Lord Himself? Bold words, bolder deeds. That's what we want. I myself couldn't eat it. There was no asafoetida. Pardon me? Asafoetida. Hing. Though it would have made it easier to swallow. I've been asked many times, Swami, why do you laugh so much and make so many jokes? I become serious sometimes when I have a stomachache. Sometimes people speak out to my face, Swami, you're a priest. You should not be laughing and making so many jokes like ordinary men. Such levity does not look good on you. To which I reply, we are children of bliss. Why should one look somber and miserable? If one who lives in Lord becomes miserable, what is the use of living in Him? What is the use of such a God? Throw Him overboard into the Pacific Ocean. We do not want Him. Three more lectures and my London work are finished for this season. Dear Lord says, start for old India. And I obey. আমার মা ত্বম হি তারা আমি জানি গো দিন দয়াময়ী তুমি দুর্গমেতে দুঃখ হরা আমার মা ত্বম হি তারা। भारत वापस आने के पिछले दिन मेरे एक अंग्रेजी दोस्त ने मुझसे पूछा, स्वामी जी, वैभवपूर्ण, शक्तिशाली, अद्भुत पश्चिम में 4 साल रहने के अनुभव के बाद अब आप अपनी मातृभूमि में लौट रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? मैंने कहा, भारत को मैं पहले भी प्यार करता था, लेकिन अब तो भारत की धूल और हवा का एक एक स्पंदन मेरे लिए पवित्र हो चुका है। भारत मेरे लिए एक धार्मिक यात्रा का स्थान, एक तीर्थ स्थल बन चुका है।
पश्चिम के लोगों के लिए मेरा संदेश वीरतापूर्ण था और उससे भी अधिक बेखौफ और वीरतापूर्ण संदेश है मेरे देशवासियों के लिए। हम सब भारत के पतन के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं। एक समय ऐसा था जब मैं भी इस पर यकीन करता था, लेकिन अपने अनुभवों के उस स्थान पर खड़ा होकर मैं पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं कि मैं गलत था। पिछले हजारों सालों और उससे भी अधिक समय से आपको हमेशा बताया गया है कि तुम कमजोर हो, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम किसी काम के नहीं हो, और तुमने भी इस पर विश्वास करना शुरू कर दिया है। अरे जब मनुष्य खुद से घृणा करना शुरू कर देता है तब समझो कि उस पर आखिरी प्रहार हो चुका है। जब व्यक्ति अपने पूर्वजों को लेकर शर्मिंदगी महसूस करने लगता है तो समझो कि उसका अंत करीब आ गया है। मैं यहाँ हिंदू जाति का एक छोटा नगण्य सा हिस्सा हूँ, फिर भी मुझे गर्व है अपनी संस्कृति पर, मुझे गर्व है अपने पूर्वजों पर, मुझे गर्व है अपने आप को हिंदू कहने पर, मुझे गर्व है कि मैं आप लोगों का एक तुच्छ सेवक हूँ, मुझे गर्व है कि मैं आपके देश का वासी हूँ। तुम जो वंशज हो सबसे यशस्वी ऋषियों के, जिन्हें संसार ने कभी नहीं देखा, ईश्वर की कृपा से जो हमें कमजोर मानते हैं और नीची दृष्टि से देखते हैं, वह मुझे अपना गुरु मानते हैं। स्वामी विवेकानंद की, 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 स्वामी विवेकानंद की। भारत के युवकों, मैं आपको अपनी तरफ से एक जागीर दूंगा। गरीबों को सुधारने का संघर्ष, अज्ञानी और दबे हुए लोगों के प्रति दया, ये जागीर। इसी क्षण पार्थ सारथी के मंदिर जाइए, उस भगवान के पास जो गोकुल के मासूम ग्वालाओं का दोस्त था, हितैषी था, जिसने अपने बौद्धावतार में प्रतिष्ठित लोगों से दिए हुए न्योतों को ना मानकर एक वैश्या के घर गया ताकि उसका उद्धार कर सके। उस भगवान के सामने घुटने टेक कर बैठिए और ये प्रण कीजिए कि आप अपना सारा जीवन इन दबे हुए लोगों के उद्धार में और सेवा में समर्पित कर देंगे। जब मैं पाश्चात्य पहनावा पहन के घूमने वाले अपने देशवासियों को देखता हूँ तब मेरे मन में यह विचार आता है, शायद ये लोग भारत में रहने वाले गरीब, अज्ञानी, अनपढ़ और दबे हुए लोगों को अपना देश बंधु मानने के लिए शर्मिंदा हैं, इसलिए ऐसा पहनावा पहनकर घूम रहे हैं। पाश्चात्य लोगों ने तो हमें अब ये सिखाया है कि लंगोट पहनकर घूमने वाले ये बेवकूफ, गरीब, अशिक्षित, अज्ञानी करोड़ों भारतीय अनार्य हैं, इसलिए हमारे भाई लोग नहीं। अन्य लोगों के इन तुच्छ बातों पर यकीन करके, उनका तुच्छ अनुकरण करके, उनका सहारा लेके कमजोर हुए ओ मेरे भारत, इन दुर्गुणों के सहारे क्या तुम फिर एक बार नागरिकता की असीम ऊंचाइयों को छू पाओगे? आप उस समुदाय से क्या अपेक्षा रख सकते हैं जिस समुदाय ने सैकड़ों वर्ष सिर्फ इस गहरी समस्या की आलोचना में बिता दिया कि वे एक गिलास पानी दाएं हाथ से पिए या बाएं हाथ से? उस राष्ट्र की अवनति और क्या हो सकती है जहां उसके अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने रसोई घर के नियम कानून बनाने में अपने